I take this privilege to convince you as a part of this pharmacovigilance awareness program being organized by the Government Unani Medical College, Patna. The topic which I've intended to share my fellow colleagues and the people of Unani fraternity is the Drug and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act 1954 and the role of Unani medical practitioners, in fact, how this Unani medical practices is being happening and how this Drug and Magic Remedies Act is uh, what are the regulations of the Drug and Magic Remedies Act which are applicable to Unani medical practice. I am trying to place before all of you people to understand what are the limitations and in what way we can extend our true services to the suffering humanity, keeping the regulations of the government of India and the objectives of the pharmacovigilance of Ayurveda, Siddha, Unani, and homeo drugs. In this next, whatever the time we are going to spend, I would like to emphasize this is the objective of the presentation, what we are going to cover. Initially, we'll try to understand what is meant by misleading advertisement. But at the same time, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि the importance of Drug and Magic Remedy Act 1952 है क्या चीज. Ultimately, इस presentation के दौरान वजह से हम I'm trying to create awareness among the stakeholders of Ayurveda, Siddha, Unani, homeo drugs. Here, that stakeholders means not only the practitioners of Unani, teachers, researchers, students, interns, and the people involved in the pharmacy, development of the drug, dispensing of the drug, including the patient who is consuming the Unani and the Ayush system of the drugs. Finally, the purpose of this presentation is to make understand what does it mean by objectionable advertisement. If it is there, my intention is to developing the culture of reporting such objectionable advertisement to the authorities who will be the watchdogs of controlling such a misleading advertisement. Finally, there is a small conclusion. Inshallah, we'll try to cover all these things during this next 45 minutes. If you look at this slide, in the picture, Patanjali एक आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है. ऋषिकेश से हरिद्वार से ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाती है. उन्होंने इस तरह का इश्तिहार शाया किया, पातंजलि की इस दवा से कभी नहीं होगी सर्दी, जुकाम, खांसी, गला खराब. क्या आपको इस एडवर्टाइजमेंट से कुछ बात समझ आ रही है कि कोई दुनिया की किसी भी फार्मेसी या कोई भी ऐसी दवा हो सकती है कि जिसके इस्तेमाल से कभी नहीं होगी सर्दी, जुकाम, खांसी, गला खराब? जबकि इन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पातंजलि की इस दवा से. एक और साहब ने इस तरह का इश्तिहार शाया करा जो डेली उर्दू सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें शुगर, डायबिटीज बीमारी नहीं है, ये होने वाली बीमारियों की पहचान है. इफ इट इज ओनली ए सिम्टम ऑफ सर्टेन डिसीजेस, देन मेरे ख्याल से हिंदुस्तान डायबिटिक कैपिटल कभी नहीं कहलवाएगा. एंड कह रहे हैं कि पहले ही दिन से शुगर की गोली छोड़ सकते हो. द पर्सन हु इज क्लेमिंग दैट if it is a diabetes, though it is not a disease, it is a symptom of some of the diseases. If you can receive treatment from the person, the day first your sugar, you can remove, you can stop taking the other anti-diabetic drug. एक साहब इस तरह इश्तिहार शाया करवा रहे थे कि 100% guaranteed cure for arthritis, वजह मफासिल और any joint pain. बदन इंसान की जितने भी जोड़ है, जहां कहीं का भी दर्द हो या वजह मफासिल हो, कह रहे हैं कि 100% गारंटी और शाफी इलाज की दावा कर रहे हैं. एक साहब ने इस तरह शाया करवाया बगैर ऑपरेशन मोतियाबिंद का इलाज. मोतियाबिंद मीन इट इज अ कैटरैक्ट. मजीद कहते हैं ग्लूकोमा जैसे मुहलिक मर्ज का मुकम्मल इलाज, दूर या करीब नंबर की ऐनक से हमेशा के लिए नजात. यहाँ एरर ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए भी ये दावा कर रहे हैं कि सरदर्द के ऐनक से सिर्फ 2 हफ्ते में छुटकारा. If you look at all these and moreover another advertisement which claims that गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी, क्योंकि गुर्दा और पित्ते की पथरी पिघल कर साफ और दोबारा पथरी न होने का मुकम्मल इलाज.
कह रहे हैं कि खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है। मजीद इनका क्लेम है कि देयर इज नो साइड इफेक्ट, नो ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। सिर्फ इन दवाओं से गुर्दा और पित्ते की पथरी के लिए साफ इलाज कह रहे हैं। गालिबन ये वाला साइड आपको नजर आ रहा होगा कि इंतहाई व्रिंकल, चेहरे पे झुर्रियां पड़ा हुआ चेहरा, उसके बरक्स बिल्कुल साफ और शफाफ चेहरा एक खातून का दिखाई दे रहा है। एक दावेदार इस तरह लिखा है कि लेस व्रिंकल्स इन ओनली मिनट्स, नॉट मंथ्स, ईयर्स। दुनिया की कोई ऐसी दवाई, ऐसा कोई तरीका होगा कि इस कदर झुर्रियों को, व्रिंकल्स को जो चेहरे से चंद लम्हात में, मिनट्स में खत्म कर सकते हैं। मेरी मुराद है इन तमाम इश्तिहारात में all these advertisement directly claiming that they are going to give a complete cure, 100% cure, and the product of one particular pharmaceutical industry, if you use, you may not be affected. Diabetes, like such one of the biggest metabolic problem, is not at all a disease, and it can be controlled with the drug. Glaucoma, like a dreaded condition, is treatable. So all these kind of advertisement which we used to see in the print and digital media, yeah, आ गया सर। ओके सर। तो पातंजलि का क्लेम, शुगर से मुताल्लिक 100% गारंटी इलाज, मोतियाबंद और ग्लूकोमा का शर्तिया इलाज, गुर्दे और पित्त की पथरी का इलाज, चेहरे की जो झुर्रियां हैं उम्र से मुताल्लिक, इन तमाम इश्तिहारात को अगर आप गौर से देखोगे तो all these kind of advertisements are daily we used to come across in print and digital media. Mostly 80% of such advertisements are circulating in the social media nowadays, has taken a greater occupancy of such a misleading or dubious kind of advertisement. I believe that if you look at all these things, one and another way, an ordinary man, people who are frustrated with the diseases, they incline toward this kind of a false claims, and they have become victimized with this kind of advertisement. So I'm taking another important, interesting thing is, एक लड़की, जवान लड़की, जो जिसका रंग बिल्कुल इंतहाई सियाह था, वो अपने वालिद से अपनी परेशानी का इज़हार करी है। वालिद कह रहा है कि बेटा तुझे रिश्तों में, तेरी शादी के लिए मुझे बहुत दुश्वारियां हो रही है, मैंने कई कोशिश की, क्योंकि तुम्हारे रंगत की वजह से तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। तो बराबर में उनके अपने रिश्तेदार कह रहे हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे पास एक ऐसी दवाई है जिसके सिर्फ 2 बूंद इस्तेमाल करने से इस लड़की का, गोया के उन तमाम अफराद का रंग जो सियाह होगा, काला होगा, वो सिर्फ 2 बूंद के इस्तेमाल से, जिनके ओरल इस्तेमाल करने से रंग इंतहाई सफेद में बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा, जिसके लिए कोई मुद्दत दरकार नहीं है। चंद लम्हात में सिर्फ 2 बूंद एक पर्टिकुलर चीज के इस्तेमाल से सियाह शख्स सफेद में बदल जाएगा, खूबसूरत बदल जाएगा, जैसे लोग तवक्को करते हैं। एंड नो, ये दावा कर रही हैं दोनों खातिन, जिस चीज को उस सियाह छाप लड़की को इस्तेमाल किया गया था, वो दरअसल एक डिटर्जेंट लिक्विड के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाला व्हाइटनर है। एक रीजनल एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने इसको बनाया हुआ था। उम्मीद कि आप लोग इस तय में जो बॉटम में जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हो, शुरू में इब्तदाई स्लाइड में जो लड़की मगमूम थी, डिप्रेस्ड थी, खौफजदा थी, फाइनली बहुत खुश महसूस कर रही है। सो दिस एडवर्टाइजमेंट, इफ यू लुक एट दैट, कहीं भी अक्ल इस बात को मानने के लिए तैयारी नहीं होती कि दुनिया में कोई ऐसी चीज हो जिसके इस्तेमाल से ऑल ऑफ सडन कोई मिराकुलस, जादुई, तिलस्मी तौर पे कोई चीज में तब्दीली आ जाएगी, बिलखुसूस इंसान की रंगत के एतबार से। क्या आपको लगता है कि इस तरह के इश्तिहारात अगर किसी बंदे ने देख लिया तो हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे, जिसके नतीजे में उनसे अपने माली तौर पे बहरान में चले जाएंगे, साइकोलॉजिकली कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। बट दिस इज यूज्ड टू बी हैपन अमंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आल्सो। आई बिलीव दैट इन दोनों स्लाइड्स की बुनियाद पर आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा कि ये सारे इश्तिहारात जो वीडियोस की शक्ल में या अखबारों में जो शाये होते हैं,
अक्सर लोगों को गुमराह करते हैं. We call it as a misleading, sometimes technically we say objectionable advertisements. क्योंकि आज हमारा जो मौजू है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954, क्योंकि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट से का ताल्लुक बहुत सारी चीजों पे है. बिल्कुल हम फार्माको विजिलेंस की अगर बात किया जाए, हम फार्माको विजिलेंस तो आप लोग गालिबन समझते ही हैं, लेकिन इसके डोमेन में, इसकी जो परव्यू में मिसलीडिंग और ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स भी शामिल हैं. ऐसे इश्तिहारात जो लोगों को गुमराह करते हैं, जो मिराकुलस इफेक्ट के दावे करते हैं, ये भी सिर्फ हिंदुस्तान, India is the only country which inculcated misleading or objectionable kind of advertisement under the domain of pharmacovigilance. Because India, I'll take you to the subsequent slide, how much of the people are affected with this kind of a misleading advertisement, particularly from the Ayush system of medicine, with they are promoting such a dubious kind of false claims. So misleading advertisement is a part of the pharmacovigilance program. मजीद आगे चलने से पहले मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि एडवर्टाइजमेंट, इसका मतलब हुआ कि एनी नोटिस, कोई सर्कुलर, कोई भी लेबल, रैपर, हैंड प्रिंट आउट, एक रैपर, एनी डॉक्यूमेंट और एनी अनाउंसमेंट, either it can be made orally or by means of producing and transmitting through digital, lights, smoke, sound, etc. किसी भी चीज का अनाउंसमेंट होता है किसी भी माध्यम से, तो उसको एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है अमूमन. द पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज टू inform in the sense to create awareness among the people so that they pursued. The advertisement will try to encourage the people who are looking toward the advertisement, and it reminds the consumer, लोगों को इस बात की याद दहानी कराते हैं कि there are certain products and services that will assist the consumer to make informed purchase decision. हम में से भी बहुत सारे लोग होंगे रोजमर्रा किसी न किसी इश्तिहार को देखकर, इश्तिहार से रागिब देखकर हम उसकी तरफ रागिब होते हैं, और मुमकिन है कि हमारे बहुत सारे फैसले महज एडवर्टाइजमेंट की बुनियाद पे भी हो सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट के दो मकासद हो गए, एक ट्रू एनकरेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. समटाइम इफ द प्रोडक्ट्स आर मिसलीडिंग, giving wrong notion, giving wrong characteristics of any product or any kind of a thing, they are the matter of concern. अगर देखा जाए एडवर्टाइजमेंट में there are different medias are involved, और एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा जो सोर्स होता है मैगजीन्स हैं, बिलबोर्ड्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन. इवन nowadays internet has occupied the biggest area of advertisement. This is in hierarchy, we can see the pyramid. At the bottom we have the magazines, different magazines they are promoting. Ultimately होता क्या है कि अगर हम किसी भी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, because all advertisement have certain influence on the people. Sometimes we say it is a good, I wish I could have it all. क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत सारी चीजें बताए जाते हैं जिससे हम मुतासिर होते हैं, काश ये तमाम चीजें हमारे पास होती या मेरे पास होती. Some people say that I learned something new today, because the purpose of advertisement is creating awareness of the people. So ultimately advertisements are, if they are on the right path, they are good for the consumer or the people. इस बात को मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में जो मेजर रोल प्ले करता है वो मीडिया में देखा जाए तो, बिकॉज द मीडिया रीच रेट इज वेरी हाई. लुक एट दिस डिजिटल मीडिया. एक सर्वे जो कंडक्ट की गई थी, जिससे डेटा रिपोर्ट डिजिटल इंडिया 2023 दैट इज इश्यूड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली. The data report Global Digital Insights says that around 692 million internet users we have in India. This is in the beginning of 2023, the report says. अगर यही इंटरनेट यूजर्स 48% अगर कंटिन्यू हो जाएंगे तो अल्टीमेटली 467 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हो जाएंगे. ये रिपोर्ट है जनवरी 2023 की. इसका मतलब हुआ कि हिंदुस्तान की कुल आबादी का 32.8% टोटल पॉपुलेशन सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना वक्त गुजारेगा. मुमकिन है ये सोशल मीडिया कहीं भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है. दैट मे बी अ गुड बैड समथिंग व्हाटएवर इट कुड आल्सो. And now the value of such a digital media industry in India is particularly the entertainment, as because in India we have around 800 TV channels according to the Information Broadcasting Ministry. Around 36,000 weekly magazines are there. They are dedicatedly working on advertisements. More than 1,000 web portals are there. They are also encouraging these kind of advertisement.
And one of the reports says it is expected to reach $73.6 billion of expenditure in India by 2027 with this CAGR rate of 9.48. ये तमाम चीजें इस बात की दलील है कि साबित हो रहा है कि एडवर्टाइजमेंट में मीडिया का कितना रोल है. पर्टिकुलरली डिजिटल मीडिया is having highest reach in comparison to the print and TV media in India. And now, how many people are dedicated to watching such a media for whatever the reason it could be, but the most of the time or sometimes they may be misleaded with several things also. अगर आप देखेंगे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पर्टिकुलरली क्योंकि हमारा मौजू ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट से है जिसमें वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूं कि बेसिकली व्हेन वी कॉल इट एज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, एनी एडवर्टाइजमेंट दैट गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन, it is making false claim and contravening the provisions of the advertising code, because in India there are different agencies which have issued certain advertising codes. According to the code, only any advertising agency can advertise. If they deviate from the provisions of the advertising code, if they go for false information, false claim, contravening such a provision, we call it as a misleading advertisement. Unfortunately, when the government of India, the Ministry of Ayush, we had a memorandum of understanding, this sign of agreement with the Advertisement Standard Council of India, ASCI. At that time, this particular report has been published in the paper. Ayush system of medicine is among the top 3 sectors where high incidence of misleading advertisements are reported. इसका मतलब ये हुआ हिंदुस्तान में और भी कोई 2 ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई बिजनेस सेक्टर हैं जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की तशहीर करते हैं, जिसमें से आयुष मेडिकल प्रैक्टिसेस थर्ड हाईएस्ट इंसिडेंस रखती हैं. लेट मी टेक यू टू द अदर थिंग्स. अगर आप इन चीजों को देखोगे कैसे हाउ द पीपल आर प्रमोटिंग, आई सेड ऑलरेडी पतंजलि की मैंने बात बताई. अनफॉर्चुनेटली आई फाउंड वन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट provided by a doctor from Unani fraternity. He said that Shifa Unani Herbal Clinic, somewhere in the southern India, he claimed that cure liver cirrhosis at early stage, 100% Unani herbal medicine, 100% safe, no side effect. Here, this particular advertisement is objectionable advertisement only because so many things are which are contravening to the Drug and Magic Remedy Act Section 3. मैं आपको आगे बता दूंगा कि सेक्शन 3 होता क्या है, जिसमें किन किन डिसीजेस में लोग इस तरह की अपील नहीं करना चाहिए. यहां दावा कर रहे हैं कि सिरोसिस जैसे मर्ज का क्यूर होगा, माना कि अर्ली स्टेज में, बट ये कह रहे हैं कि यूनानी हर्बल मेडिसिन 100% सेफ, नो साइड इफेक्ट. दौरे हाजिर में ये बात साबित हो चुकी है कि दुनिया का कोई भी तरीका इलाज 100% सेफ नहीं हो सकता और कोई भी चीज साइड इफेक्ट नहीं रखती. दिस इज ऑब्जेक्शनेबल. इस एडवर्टाइजमेंट में गालिबन आप अमिताभ बच्चन जी को देख रहे होंगे कि डाबर ने दावा किया कि रेड पेस्ट वर्ल्ड्स नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट. इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में जो दूसरे आयुर्वेदिक के अगर टूथपेस्ट होंगे तो दे मे नॉट बी द नंबर 1, दे आर सब्सिक्वेंटली दे आर ऑक्युपाइंग समवेयर less than this one. This particular claim of number 1 is supposed to be a misleading advertisement because the people will get attracted to such a claims and the person who is promoting this product. Here we have unfortunate one, this is called as a family planning and a product, B-Gap herbal गर्भनिरोधक टैबलेट. ये कह रहे हैं कि मात्र एक गोली 6 माह के लिए इस्तेमाल कीजिएगा. बच्चों में अंतर रखने के लिए सुरक्षित, सरल वो असाधारण उपाय. So this is again contravening the Drug and Magic Remedy Acts. This is another one, world's number 1 Neeraj Clinic, number 1, that is famous for, here what they are claiming is Neeraj Epilepsy Clinic. ये कहते हैं कि नीरज एपिलेप्सी क्लिनिक द बेस्ट एपिलेप्सी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इन इंडिया, दैट टू ऋषिकेश हरिद्वार में है. अगर यहाँ इसका मफहूम पढ़ोगे तो कह रहे हैं Ayurvedic medicine has almost zero side effect, is effective for long term and benefit other organs. So all these claims are absolutely condemnable. It is a contravening the Drug and Magic Remedy Acts. यहाँ डॉक्टर बत्रा ने एक इश्तिहार शाया करवा था, न्यू हेयर, दिस इज अ गुडनेस ऑफ द होम्योपैथी, द बायोलॉजिकल ग्रोथ फैक्टर. इसका मतलब है इनका कोई प्रोडक्ट ऐसा जो बायोलॉजिकल ग्रोथ फैक्टर रखता है.
और कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया बायो इंजीनियर्ड हेयर visible results guarantee in 6 sessions. So this time frame assuring the guarantee of any outcome is again, this is certainly an objectionable advertisement. यहाँ काफी इश्तिहारात आपको देखने को मिलेंगे. If you look at the first, try Sensa free, can get a gym without going to the gym, no counting calories, no stimulants, no pills. Absolutely wrong and objectionable. Get bigger and the firmer bursts in the week. Gain 1 to 2 cups, natural, safe, guaranteed. ये कह रहे हैं कि इस तरह के promoting this aesthetically. This is also one of the objectionable. Here, have you treated that crazy wrap things? So all these things, including this less wrinkle in only minutes, all these advertisements are provoking the ordinary man wherever this particular advertisement is going, instigating the people to incline towards such a advertisement if they are facing the problem. According to the Drug and Magic Remedy Act and the regulatory authorities of the India, all these ads are objectionable or misleading one. इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट यहाँ बता रहे हैं वजन घटाने के माध्यम से नो साइड इफेक्ट, करीबन 40,000 लोगों को इस्तेमाल किया. अभी ऑर्डर करें, दवा बता रहा है कि हर्बल डिटॉक्स, इसके बरक्स बिना किसी साइड इफेक्ट के वजन घटाइए केवल 15 दिन में. I don't believe there is some medicine which provides you complete remedy with the use of medicine for 15 days only. ये कह रहे हैं कि green coffee with the gracia and herbal detox, these are the some of the drug here. Lose weight, look great and feel healthy. Pure Ayurvedic, Garcinia, something I have mentioned. Increase height in 1 week. We don't know how they are going to make assure that within a week. It could be a drug or anything, but all these drugs are contravening the Drug and Magic Remedy Acts. इसी तरह एक और ऐड बता रहा है कि जाने पूरी सच्चाई, सबसे जल्दी गोरे बनाने वाली क्रीम. ऐसे कोई दवाई होती है कि सबसे जल्दी बिल्कुल आपको गोरा बना दिया जाएगा? Here we have lose weight with some Ayurvedic medication. एक साहब क्लेम कर रहे हैं रिलीफ फॉर कैंसर पेशेंट, ऑल chronic diseases, not only cancer and all chronic diseases with Unani medicine. They are beneficial for all type of a cancer, complete herbal treatment, no huge financial burden. Internationally famous Indian Ayush doctor. So लगता है कि लोगों को किस तरह गुमराह करने की कोशिश की जा रही है अल्फाज को बदल बदल कर. ये these are all reported misleading objectionable advertisements. एक स्टडी कंडक्ट की गई थी केरला में सन 2019 में, मार्च 6 2019 में शायद हुआ था. स्टडी को उन्होंने कैप्सूल स्टडी का नाम दिया गया. कैप्सूल स्टैंड फॉर कैंपेन अगेंस्ट सूडो साइंसेस यूजिंग लॉ एंड एथिक्स. इस स्टडी का लुब्बे-लुबाब यही है कि ये जो स्टडी उन लोगों पर की गई जो नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, मीन पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग बट दे आर नॉट इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड वन, एंड नाउ they themselves alone, around 70 to 80 practitioners, they used to circulate the products privately. Around 80 such a products are there. Towards the promoting of such a product, they spend around 4,000 crores a year. सन 2019 की बात अगर हम 18 की भी बात ले लें, 400 करोड़ रुपये महज ये नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स उनकी अपनी दवाओं को ओवर द काउंटर सेल करने के लिए प्राइवेटली अगर 400 करोड़ रुपए सिर्फ एक स्टेट में कर रहे होंगे, तो मान लीजिए हिंदुस्तान के 32-40 स्टेट्स में इसका क्या आलम होगा. इस रिपोर्ट में ये भी बात वाज़ेह होगी कि करीबन 36% ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं जो सेक्सुअल डिजार्डर्स को प्रमोट कर रहे थे. 7.8% ब्यूटी केयर पर, 5.2 वर आर्थराइटिस, 5.34 on obesity, 8.41% for diabetes. Likewise, altogether hair aesthetics पे काफी क्लेम किया गया हुआ है. बताया जा रहा है कि 80 to 90% of such advertisements are seen in various media each day. क्या हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है ऐसे? आई होप आपने ये देखा कि कैप्सूल स्टडी जिसे कहा कैंपेन अगेंस्ट सूडो साइंसेस यूजिंग लॉ एंड एथिक्स.
इस स्टडी से ये बात आया हुई है कि नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, आई कैन से क्वैक्स, आर non institutionally qualified people, they themselves spending 400 crores of rupees towards advertisement for promoting their products. अभी मैंने देखा मुख्तलिफ रीजनल अखबारों में सन 2023 में ये बताया जा रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ कॉस्मेटिक्स पे एडवर्टाइज किया जा रहा है। 2023 5,000 crores of marketing towards advertisement of the products for aesthetics or the cosmetics पे किया जा रहा है। And that makes all of a sense because our country must have some regulatory agencies. How to regulate this misleading advertisement? So then the government of India has established some of the what are the regulators, I can say watchdogs, जिसके सरफहरिस्त अगर देखा जाए तो हम फार्माकोविजिलेंस ऑफ आयुष ड्रग को हम रख रहे हैं, क्योंकि सन 2018 से फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ आशु ड्रग्स ने काफी कुछ किया, जिसकी रिपोर्ट मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जिसे कहते हैं गामा, द ग्रीवेंसेस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई भी शख्स किसी भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को देखा हो, मुशाहिदा किया हो या उससे मुतासिर हो, उससे अफेक्टेड हो, they can go directly to the website गामा। वेबसाइट पे आप अपना रजिस्टर करके जो शिकायत है आप उस पर दर्ज कर सकते हो। हिंदुस्तान में द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एक प्राइवेट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स को एनालाइज करती है और उस पर बाकायदा एक्शन भी इनिशिएट किया जा सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो खासतौर पे जागो ग्राहक जागो को नारा उन्होंने जो लगाया था, उन्होंने एक पर्टिकुलर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी बनाई है। इन दोनों ने कंज्यूमर अफेयर थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के they are considering this such a misleading advertisement, the people who are being victimized, and escalating the information to the gamma portal and some other authorities how to control this. Ministry of Information and Broadcasting, Government of India ने भी टेलीविजन एंड केबल नेटवर्किंग एक्ट को बनाया गया, जिसमें वाकायदा कहा गया कि इस तरह के डुबियस यानी फॉल्स क्लेम पर मबनी कोई भी इश्तिहार टीवी पर और केबल नेटवर्क पे शाया नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें रेगुलेशन शुरू हुई सन 1992 से चलती रही और इन लोगों ने काफी कुछ कारनामा सरअंजाम दिया। आइए हम देखते हैं कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम आशु ड्रग्स बिन जुबलात जो एमएलए से मुराद है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस ब्यूरो की जानिब से एक रिपोर्ट शाये हुई थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ आशु ड्रग्स हैव रिपोर्टेड objectionable advertisement, they are also called as the misleading advertisement, since 2018 to 2021। 3 साल की मुद्दत में, सिर्फ 3 साल में 18,812 ऐसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स पीवीपी ने यानी फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के थ्रू मिनिस्ट्री को पहुंचाया गया हुआ था। अगर हम अपनी बात कहेंगे, इंटरमीडिएट फार्माकोविजिलेंस सेंटर नेशनलिस्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन, जो डेडिकेटेडली यूनानी से रिलेटेड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पर काम कर रहा है, सन 2018 से 2023 तक कुल 6,879 अराउंड 7,000 misleading advertisement we have forwarded to the government, to the respective agencies to initiate the action, particularly here the state drug licensing authorities to take action against them, which has been provided by the Drug and Magic Remedy Act। अगर इन इश्तिहारात में अगर हम देखेंगे, करीबन 22% ऐसे इश्तिहारात रहे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड मिसलीड कर रहे थे। गायनेकोलॉजिकल और फीमेल रिलेटेड डिजार्डर पर मबनी 15% इश्तिहारात जो पिछले 5 साल हमने भेजे हुए हैं। आई एंड ईयर डिजीज से 12, स्किन एंड ब्यूटी से 9%, इनफर्टिलिटी पे 8%, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड 6%, रीनल मस्कुलोस्केलेटल से 5%। लाइकवाइज वजन घटाना बढ़ाने, बालों के अमराज, कार्डियोवास्कुलर, नर्वस, रेस्पिरेटरी कैंसर, कॉन्ट्रासेप्शन से मिला, ऐसे बहुत मजमूई तौर पे जो हमने 100% जो डेटा पेश किया हुआ है। ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग वर मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द पीपल वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल, लाइक हमारे जितने भी यूनानी के पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स हैं, वहाँ हमारे जो जेआरएफ और प्रोग्राम असिस्टेंट्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स की मदद से पिछले 5 साल में हमने इस अदद तक, इस तादाद तक हमने गवर्नमेंट की रिपोर्ट किया गया हुआ है। एंड नाउ आउट ऑफ दिस 7,000 misleading advertisement, we have reached to a maximum number of advertisements have been seized, जिन पे बाकायदा
रोक लगाई गई है, चंद लोगों पे जुर्माना भी शायद आयद हुआ है जिसकी इतलात हमारे पास आ रही है। फॉर दैट आई एक्सटेंड माई ग्रीटिंग्स टू ऑल माई पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स पैन इंडिया, जो हमारा ताउन करते रहे, बल्कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ फास्ट ड्रग्स के सोल्जर्स कहलाते हैं, जिनके ताउन से हम हिंदुस्तान में इस तरह की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पर्टिकुलरली यूनानी से रिलेटेड को एराडिकेट करने, कंट्रोल करने में आपका बड़ा ताउन रहा। फॉर दैट you are desirable to be greeted. Likewise, this is a graphically, I'm just trying to show that out 7,000 number of misleading advertisement what we have forwarded to the Ministry for Protection. जैसे मैंने बताया कि ASCI एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज ए एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक MOU कायम किया इसके साथ। MOU स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हिंदुस्तान में आए दिन आयुष के, जैसे मैंने बताया कि हिंदुस्तान में आयुष के थर्ड हाईएस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट शाये हो रहे हैं, लिहाजा उसको क्या किया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आस्की की मदद से एक मुआहदा हुआ था, तो इन्होंने आस्की ने खुद इस तरह के एडवर्टाइजमेंट पर जब उन्होंने तज्जिया किया, एनालिसिस किया, दे फाउंड दैट ड्यूरिंग 17 and 18 732 misleading advertisements were there. And the year 1819, 497 reports were received by the ASCI itself. Out of these, 459 cases are directly violating the Drug and Magic Remedy Act 1954. इसका मतलब हुआ कि हिंदुस्तान में जो रेगुलेशन है, जो कानून है, उसकी खिलाफवर्जी हो रही थी, और ये कहां से, स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटीज ने इसको वाजे किया। तो देन इसमें से बहुत सारे 456 की जो बाकी थे वो उन लोगों ने अपने अपने इश्तिहारात को विड्रॉ कर लिया। They learned about that, हमसे गलती हो गई और हमारे यहाँ से जो भी था, they corrected the language of the advertisement, they totally withdraw, but 456 stated that they are straightforward violating the DMR Act 1954. अब आइए हकीकत में ये सारी बातें तो हमने सुना, उसमें हाउ दिस ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एक्ट 1954 है क्या और किस तरह ये अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ हम इससे मुराद है दिस ड्रग मैजिक एंड रेमेडी एक्ट जो है एक पार्लियामेंटेरियन, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत कायम किया गया, जो सन 1954 में कायम किया गया था, एंड जिसे हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज कंसेंटेड, उन्होंने अपनी रजामंदी शायर की 24 अप्रैल 1954 में, एंड नाउ दिस एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1955। यही वजह है कि इसको हम एक्ट 1954 कहा जाता है। 1955 में इसमें कुछ रूल्स भी बनाए गए जिसे हम ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड रूल 1955 कहते हैं। मकसद इसका यही है कि एक्ट इस बात पर तरजीह देता है कि टू कंट्रोल एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स इन सर्टेन डिसीजेस। चंद डिसीजेस ऐसे हैं जिनमें कोई भी इस तरह का दावा नहीं कर सकता कि हमारी दवाई उस पर बहुत ज्यादा असर करेगी। टू प्रोहिबिट द एडवर्टाइजमेंट फॉर सर्टेन रेमेडीज, कुछ इलाज ऐसे हैं जिन पे इम्तना लगाना, मकसद प्रोहिबिट करना, क्योंकि वो इलाजात इस तरफ दलील करते हैं कि वो तिलसी में असर रखते हैं या जादुई असर रखते हैं। दे कंटेन सम मैजिक क्वालिटीज। सो अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम fraud and unscientific products and the procedures to safeguard the peoples of the nation. कैसे करेगा? For here इन्होंने एक बड़ा कंटेंट बनाया हुआ है कि इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 स्टैट्यूटरी बात कर रहा है, सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन बयान की जिसमें ड्रग किसको कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय ड्रग अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। ड्रग से मुराद वो तमाम दवाएं जो बैरूनी और अंदरूनी तौर पर इंसानों में या जानवरों में इस्तेमाल करते हैं दवाएं, और एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी शय, कोई चीज जिसकी गर्ज़ो गायत मर्ज के डायग्नोसिस के लिए या शिफा के लिए या अलामत को घटाने के लिए या इलाज के तौर पे या मर्ज को रोकने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। Here we have a definition of medicine. Here we have any substances which is intended to be used. मजीद इसमें इजाफा किया गया, any article other than food intended to affect or influence in any way the structure or any organic function of the human body. So इन तीनों चीजों को डेफिनेशन में शामिल किया गया, जिसमें ड्रग से मुराद सिर्फ कोई जरूरी नहीं है कि दवाई हो, बल्कि वो तमाम अशिया जो इलाज और मर्ज की शिफा के लिए या तशखीस के लिए इस्तेमाल की गई हो, ये सारी चीजें ड्रग के डेफिनेशन में आती हैं। मैजिक रेमेडी से मुराद इसमें उन चीजों को शामिल किया जैसे तावीज है, मंत्र है,
कवच है, कोई किसी चीज का उड़ावा या किसी चंद कलमात का वरदान करना, वह ये महज इस वजह से कि दे कंटेन अलिजिड पोसेस मिराकुलस पावर, जिसके इस्तेमाल से मुमकिन है दैट विल हेल्प टू डायग्नोज द डिसीज, क्यूर द डिसीज, मिटिगेट द डिसीज, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज इन इधर एनी ह्यूमन और एनिमल। ये हुआ तलसीमा, मतलब कोई तावीज है, ये सम वरदान करना, ये हियर दे आर डूइंग सम मंत्रास आल्सो। ये सारी मैजिक रेमेडी के डेफिनेशन में आती हैं। मजीद यहाँ डेफिनेशन में एक बात को बाकायदा आया किया हुआ है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, who are the people called as registered medical practitioner? A registered medical practitioner means a person who is holding a qualification granted by an authority. कौन अथॉरिटी होगा? स्पेसिफाइड इन नोटिफाइड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916। ये इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एक कन्वेंशनल साइंस के लिए एक्ट बना था। इसके अलावा बाकायदा दीगर तिब से या प्रैक्टिशनर्स हैं who are entitled to registered as a medical practitioner under any law for the time being in force in any state। हर स्टेट में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक लेजिस्लेटेड लॉ है जिसके तहत शेड्यूल के तहत बास क्वालिफिकेशंस को कंसिडर किया गया है कि दे आर द मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड वो तमाम लोग इस तरह की जो क्वालिफिकेशन रखने वाले उन स्टेट्स में रजिस्टर करवा सकते हैं। इस डेफिनेशन का लुबलबाब यही है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर द पीपल हु आर ट्रेन्ड, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड एंड बीन रेगुलेटेड बाय ए रजिस्ट्री ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट एंड द नेशन। तो मकसद यही हुआ कि इस डेफिनेशन से यहाँ हो जाएगा कि बाजार में जो शख्स इलाज और मुआलजा फराहम कर रहा है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। मेरी राय में वो तमाम अफराद जो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होते हैं हम RMPs कहलवाएंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड क्लेमिंग सम अदर काइंड ऑफ ए प्रैक्टिसिंग एबिलिटीज आर कंसिडर्ड टू बी क्वैक्स। जैसे मैंने कहा कि इस सेक्शन में, इस ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जिसमें खास तौर पे हम सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7 पे बात करेंगे एंड सेक्शन 16। इस एक्ट में ऐसे पावर्स इन्वेस्टेड किए हैं कि उसको जरूरतन वक्तन फौक्तन इसके अंदर इजाफा किया जाएगा, कोई चीज तखफीफ की जाएगी। एक शेड्यूल भी मौजूद है जिसमें डिजीजेस हैं जिनमें कोई शख्स दावा नहीं कर सकता कि मैं उनका इलाज करूंगा। चलिए इसमें से देखते हैं कि सेक्शन 3 ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो प्रोहिबिट करता है एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्टेन ड्रग्स, चंद दवाओं का चंद डिसीजेस में प्रोहिबिट करता है। खास तौर पर उस वक्त जिस वक्त लिखा गया था मिसकैरेजेस, प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन एंड मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर सेक्सुअल प्लेजर, ये बात बिल्कुल मोस्ट प्रायोरिटी पे दी गई थी। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से देखा गया था, बट दिस पर्टिकुलर सेक्शन 3 इज गोइंग टू टॉक अबाउट एक शेड्यूल इज देयर अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। शेड्यूल में इस वक्त 54, 56 ऐसे डिसीजेस शामिल हैं जिनमें से किसी भी डिसीज के मुताल्लिक कोई भी शख्स दावा नहीं कर सकता, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है कि मैं उसका इलाज करूंगा। इफ यू लुक एट दिस शेड्यूल डिसीजेस, हियर वी हैव 54, उसके बाद में 2 इजाफा हुए थे, उसमें आस्थमा और थायराइड डिसीज 2 चीजें मजीद इजाफा हुई अमेंडमेंट्स के बाद। ये वो डिसीजेस हैं जिसमें कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं इन डिसीज का इलाज करूंगा। ये था 1954 से रिलेटेड। अभी एक ड्राफ्ट बनाई हुई थी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट को अमेंड करना चाहती थी। एक्ट 2020 बनाया जा रहा है, ये ड्राफ्ट हो चुका है। मेरे इल्म में इस बात का आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि अभी इन्फोर्स तो नहीं है। इन्होंने मजीद 24 डिसीजेस को बढ़ाया हुआ है। बिन जुमला अब इस शेड्यूल में 78 ऐसे डिजीजेस हैं जिसमें कोई भी शख्स एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा कि मैं इन बीमारियों का इलाज करता हूं। राइट। सेक्शन 4 जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट का कहता है कि नो पर्सन शिल टेक पार्ट इन पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ड्रग और एडवर्टाइजमेंट। जैसे अगर पिछले स्लाइड्स में अगर आप देखोगे, बाबा रामदेव जी, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज या इस इश्तिहार को तैयार करने वाले कंपनीज या फर्द हैं, वो तमाम लोगों को शामिल किया जाएगा। Because if I have involved directly or indirectly giving a false impression regarding the true characters of the drug by engaging myself in
false claim of the drug or misleading any particular material. So ये सेक्शन 4 के तहत आ जाएगा कि any person, doctor, practitioner, company, industry or any celebrity, they are involving in publication of advertisement and part of the advertisement contents. सेक्शन 5 इस बात की गवाह कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग मैजिक रेमेडीज, आप मेरे पास आइए, मैं आपको दवाई दूंगा, 15 दिन में आपकी बीमारी जाती रहेगी, या सिर्फ लम्हात में मैं आपके चेहरे की झुर्रियों को दूर कर दूंगा, 100% मैं आपके मर्ज का इलाज करूंगा, जरा सर्जरी की कोई जरूरी नहीं है। इस तरह के जो दावे और यकीन दिलाएगा, so that they can make the people to be affected or to be inclined toward the treatment which is being governed by the section 5 of the Drug and Magic Remedy Act. सेक्शन 6 में ये तमाम चीजें उन चीजों से मुताल्लिक है कि किसी दवा को और किसी इश्तिहार को ना आप इंपोर्ट कर सकते हो ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। अलावा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो किसी दवा के मुताल्लिक या किसी एडवर्टाइजमेंट से मुताल्लिक हो, जो सेक्शन 3 में बताई गई डिजीज हो, सेक्शन 4 सेक्शन 5 में बताई गई है, इन तमाम चीजों पर पाबंदी आयद करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, अगर कोई शख्स वायलेट कर रहा है यानी कंट्रवीन कर रहा है कानून की, तो क्या किया जाएगा? सेक्शन 7 इस पे पेनाल्टी की भी बात कर रहा है। यहाँ अगर आप बगौर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 2020 जो इस वक्त नाफिज है, वो कहता है कि इफ एनी पर्सन कंट्रवीन्स द एक्ट, एनी रूल्स मेड अंडर द एक्ट 2020 अमेंड हुआ है, अगर ऐसा होगा तो दैट पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फाइंड अप टू 10 lakhs एंड 2 years of imprisonment has been proposed in the cases of first offense. पहली बार अगर इस तरह की कोई गलती करेगा तो 10 लाख रुपए तक जुर्माना और 2 साल के लिए कैद बमुशक्कत होगी। अगर फर्द, एक ऑर्गेनाइजेशन दोबारा इस तरह की हरकत करे तो मुमकिन है उस पर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे इसकी जो कैद बमुशक्कत 5 साल तक हो जाएगी और जुर्माने की रकम 50 साल तक की जाएगी। देखिएगा, यहाँ बाबा रामदेव पतंजलि was fined 11 lakh for misleading advertisement। ये खबर आई है 2016 की, जो अखबारों में शाया हुई थी, और मकसद था इनका कुछ दवाएं इन्होंने कुछ इस तरह तशहीर की गई थी कि मधुग्रिट, आईग्रिट, कोरोनिल टैबलेट, ये 2019 में कोरोनिल टैबलेट को इस तरह दावा किया कि कोरोना से बिल्कुल शिफा हो जाएगा या कोरोना का रोकथाम किया जाएगा, जिस पर काफी बवाल मचा हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आस्की वालों ने भी इन पे एक्शन के लिए इनिशिएट किया गया था। यहाँ तय में बता, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल नेचुरली विद लाइकोडोम एक दवाई है उनकी, कह रहे हैं कि इस दवाई को इस्तेमाल कीजिएगा जिससे लिपिड लेवल घट जाएंगे। लाइक थायरोग्रिड थायराइड के लिए, बीपी ग्रिड बीपी के लिए, ये सारी दवाइयाँ, सारे प्रोडक्ट जो पतंजलि आयुर्वेदिक फार्मेसी हरिद्वार उत्तरांचल से शाया हो रही थी, यानी वहां से जो तैयार हो रही थी, तो बेस्ड अपॉन द कंप्लेंट रिसीव्ड विद द स्टेट ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी आस्की एंड द मिनिस्ट्री, इन लोगों ने स्टेट ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी हरिद्वार को कमेंट किया और फ्रॉम देयर दे हैव इनिशिएटेड द एक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ व्हिच आई हैव गॉट फ्रॉम द मीडिया इज Patanjali's Baba Ramdev was fined 11 lakh rupees for misleading advertisement. One more information I got from one of the Southern Indian Telugu newspaper is one misleading advertisement which is claiming that Sensodyne has been fined for 10 lakh rupees for misleading the advertisement. Like that, so many people have been fined of rupees more than 10 lakh rupees based upon the contravention of the what is called the misleading advertisement, contravention in the law of drug and magic remedy acts. अब हमें पता चला कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट क्या है, कौन सा सेक्शन क्या कर रहा है। 1954 से ये लागू हुआ है, बावजूद इसकी क्यों still the people are promulgating this kind of a misleading advertisement। देखिएगा, इस कानून में एक गुंजाइश ये भी बयान की गई है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी का नाम नहीं लेगी दवाओं को प्रमोट करने में। अगर आप यहाँ गौर से देखोगे, एक पर्टिकुलर कुडोस लेबोरेटरी इन्होंने हो सकता है कि ना CCRS मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की इश्तराक में एक प्रोडक्ट डेवलप किया होगा, बट नो दे आर मार्केटिंग द ड्रग आयुष IME 9 टैबलेट्स, 82 रिसर्च प्रोडक्ट्स, सेंट्रल रिसर्च काउंसिल पर ट्रेडमार्क भी इस्तेमाल किया, and they are claiming that clinically researched formulation technology transferred by NRDC. By the same time, here I have BGR 34 carbohydrate metabolism directly claiming for diabetic control। इनका ये दावा है कि CISR में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
और मुख्तलिफ एजेंसियों की ताउन से इस दवा को ऑथेंटिकेट किया गया हुआ है, या कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस को लेबल करके जो कर रहे हैं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट एंड रूल खास तौर पर इस बात को प्रमोट करता है कि ये कंट्रीविन है, यानी उसूल की खिलाफ वर्जी है। अगर इस तरह कोई भी करेगा, मतलब होगा कि अवाम नास इस बात पर जस्ट कीपिंग द ऑथेंटिकेशन ऑफ दिस मिनिस्ट्री एंड सम प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, दे इंक्लाइन टुवर्ड इट, इट इज समथिंग मिसलीडिंग द पीपल। तो लिहाजा ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में कोई भी शख्स अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में डेवलप कर रहा है, मार्केट कर रहा है, don't use the government agencies as they recommended. This is contravening to the Drug and Magic Remedy Act. The most important point what I have felt, यूनानी ही के हुक्मा तिब्बा, पहले इस बंदे को गौर कीजिए, डॉक्टर दफेदार अब्दुल रहमान BOMS MD, बाकी उन्होंने फालिद लकवा ब्रेन ट्यूमर के इलाज का दावा किया हुआ है। ये सारे दावे तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के शेड्यूल C3 के बिल्कुल कंट्रीवीन है, बट इसमें ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में एक और प्रोविजन बताया जा रहा है कि किसी भी इश्तिहार में आप उस तबीब की तस्वीर नहीं रख सकते हो और इस तरह शाये नहीं करा सकते हो। आप चाहो तो अपनी क्लिनिक पे मतलब पे आप सारी चीजें आया कर ले, बट नहीं करना चाहिए, इस तरह फोटो नहीं आना चाहिए। ये भी दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसके बरक्स यहाँ देखिएगा, करीबन 40 साल तजुर्बात का निचोड़, कैंसर का बगैर ऑपरेशन इलाज। यहाँ हकीम साहब लिखे हुए हैं, थोड़ा गौर फरमाइए। मौलाना हकीम डॉक्टर मोहम्मद इदरीस जहान रहमानी, यहाँ उन्होंने कहा है कि बैरूनी ममालिक लाखों मरीज शिफाब हो चुके हैं सरतान यानी कैंसर के 22 मरीजों का। एंड दिस इज ऑफ कोर्स, अगर आपने किया हुआ है तो फिर मरीज खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएंगे। इस तरह के इश्तिहार की जरूरत क्या है? लोगों को आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, लोग आपकी इस इश्तिहार से गुमराह हो रहे हो। बैक वक्त एक शख्स मौलाना हकीम और डॉक्टर हो सकता है। तो मैं आप लोगों की तवज्जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट सेक्शन 2 के डेफिनेशन की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो शख्स होता है जो किसी इदारे से, इंस्टीट्यूट से फारिग तहसील हो, मुस्तनद हो और कहीं रिसर्च स्टेट की रजिस्टर में दाखिल हो, उसका कोई नंबर हो RMP की हैसियत से। यहाँ इस साहब के मुताल्लिक अगर मुझे पता नहीं है, लेकिन लिखा है कि हकीम भी हैं आप, डॉक्टर भी हैं, तो ये कैसे हो पाएगा? अगर हैं तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं लोगों को इस तरफ रुझान पैदा कर देगी कि चलिए मुमकिन है मौलाना भी हैं तो कोई मैजिक तंत्र मंत्र का भी मामला करेंगे, हकीम है तो हिकमत से काम करेंगे, डॉक्टर हैं तो शायद जदीद इलाज से करेंगे। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर व्हिच मेक्स द पीपल टू इंक्लाइन टुवर्ड दिस पर्टिकुलर kind of advertisement. And I said using of the photo image of the person is also contravening the Drug and Cosmetic Act. As because nowadays hijama has got a very peak in the use of indications में यहाँ I am giving one reference of one of the Southern Indian newspaper. Many take us for ancient therapy, जिसमें कपिंग थेरेपी के बारे में बैन किया गया हुआ है। डिसीज ट्रीटेड का भी बड़ी तवील लिस्ट बैन की गई है। बात तो अच्छी है। यहाँ इन्होंने एक सेलिब्रिटी का हवाला दिया है, बैडमिंटन चैंपियन सिक्की रेड्डी गिविंग कपिंग थेरेपी डन, ऑफ कोर्स, बट इफ यू लुक एट दिस साइड इफेक्ट्स में इन्होंने लिखा कि कपिंग may cause red mark swelling and bruising temporarily, no serious side effect. How can you say that there if they have the red mark swelling bruising, it may cause some infection also? No serious mean there is no serious but have some side effects also. This is an objectionable one. Here if you look at the second advertisement, advertisements की बहुत सारे advertisement को इसलिए भी mislead कहा गया हुआ है कि that advertisement may not have vulgarity. If you look at the etiquettes of the woman, she has been undressed to show the application of this hijama में जहाँ कप लगाए जा रहे हैं कि why they have used woman as a symbol and that to undress applying this kind of a cups over there. अगर आपको फोटो दिखाना भी होगा तो बदन के ऐसे हिस्से जिसपे अनड्रेस करने की नौबत नहीं आती है, तो दैट आई थिंक दे कैन यूज, बट टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग दिस इज एन ऑब्जेक्शनेबल काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आप लोग जानते होंगे, लेट मी गिव एन अंडरस्टैंडिंग हियर, हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड, यूनिलीवर लिमिटेड, गालिबन उन्हीं लोगों ने ये लिवर आइश नाम से एक साबुन सोप तैयार किया हुआ है।
पमरादी तैलम वगैरह वगैरह. इफ यू लुक एट दिस सोप, इस पे बैन कर दिया गया. दिस प्यूरिफाइंग सोप इज फॉर्मुलेटेड विद 5000 years old of Ayurvedic wisdom to give your clear and glowing skin. कहने का मतलब आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि 5000 साल कदीम आयुर्वेदिक विजडम से, जखीरे से, नॉलेज से ये साबुन की तैयारी की गई जो आपको बिल्कुल साफ सुथरा और आपके निखार पैदा करेगा. अगर आपकी साबुन में या जो भी डिटर्जेंट है इसमें अगर इतनी असर होता तो कोई जरूरी नहीं कि इस तरह के मिसलाइड ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स को राइज किया जाए. I hope that you will be knowing about that these two advertisement, Fair and Lovely. This is one of the kind of objection Drug and Magic Remedy Act ने इसको objection कर दिया क्योंकि इस advertisement ने globally has created a what is called the racial discrimination. White presuming to be that higher category of the people in comparison to the non-whites. एक बड़ी तहरीक चल गई, बाद में इस पे बड़ा मामला हुआ. Then this organization has made change Fair and Lovely to Glow and Lovely. Glow and Lovely has made fair नहीं, fair को हटा दिया, glow कर दिया गया. Because particularly one kind of a people with a low complexion were targeted upon this. And if you look at this advertisement, they are claiming that India's #1 glow expert. इसका मतलब मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स हैं, they may not be the #1, they are subsequently less. So claiming, stating that I am the #1, I am having some extra peculiar characteristics are misleading the people to right. Coming to this recent past, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 एक और कानून है जो अमूमन बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करता है. उसके अंदर रूल 170 एक शामिल किया गया था. 1945 24 दिसंबर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट से अलग है, this is also going to regulate all the issues of AYUSHU and conventional science related manufacturing, sales, marketing of the drugs. तो इसमें उन्होंने 11th अमेंडमेंट किया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में एंड रूल में, जिसके नतीजे में 2018 में किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट में गजेट नोटिफाई किया. You know, the gist of this amendment is all Ayush ads need to be cleared by SDL, State Drug Licensing Authority. मान लीजिएगा कि मैं बिहार में हूँ, मेरी कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके मैं इश्तिहार बनाना चाहता हूँ, एडवर्टाइज करना चाहता हूँ. All such advertisement should be get cleared by the respective state drug licensing authorities, and this provision has been given by the Rule 170 of the Drug and Cosmetic Act and Rule. ये क्योंकि it deals with the controlling inappropriate advertisement. आप तो जानते हो कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद सन 2018 से पहले भी बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होते थे, लेकिन यहाँ इस बात को महसूस किया गया कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में कुछ ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, प्रैक्टिशनर अपनी दवाओं को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को अवाम नास तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रोविजन चाहिए था. प्रोविजन तो बन गया रूल 170 के तहत, बट all such advertisement should be cleared by the state drug licensing authority. But in the recent past, ये जो कमिटी होती है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, this is one called as a technical advisory board, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कायम की गई है. मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के कंट्रीवेंशंस को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पे जब दबाव लाया, कानूनी कार्रवाई, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट सुनाया जिसके तहत ये जो कमिटी है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, उन्होंने रूल 170 को वोमिट करने के लिए तक कहा गया. ये वाला 25 में 2023 में लागू हुआ. कहने का मतलब है कि जिस रूल में गुंजाइश थी कि आप अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, उसी रूल को टोटली अब ओमिट करने पे मजबूर हो गई हुई है. दिस इज व्हाट द सिनेरियो ऑफ कॉस्मेटिक एक्ट. नतीजा क्या हो रहा है? आज टुडे द 7th of October, टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार का जब मैं मुताला कर रहा था तो मैंने देखा कि दिव्या आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल ऑफ पतंजलि इतना बड़ा इश्तिहार निकाली हो जिसमें क्यूर डिजीजेस नेचुरली विद रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन, what the entire allopathic medical system could not do in treatment for incurable diseases, showing the supremacy we have done through yoga, ayurveda, panchakarma, naturopathy. For information, know nearly 500 researchers, all those things. If you look at this,
ये अगर इश्तिहार को देखोगे यहाँ, एंड सी इन्होंने सेक्शन की और भी बातें की, ऑल ओवर मेडिसिन आर अवेलेबल। इन्होंने लिखा है कि बड़ी छोटी बारीकी में लिखा हुआ है, द यूसेज ऑफ द मेडिसिन मेंशन्ड अबव इज सजेस्टिव इन नेचर, सिर्फ सजेस्ट किए जा रहे हैं, एंड इनके इस्तेमाल चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट इन दिस मैनेजमेंट ऑफ अबो, यानी इन मस्कुरा बीमारियों में इसकी चॉइस हो सकती है, कहा गया है। मजीद कहा है कि अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, डोंट गो एंड टेक दिस मेडिकेशन फ्रॉम द ओवर द काउंटर एंड ऑलवेज टेक द मेडिकेशन अंडर मेडिकल सुपरवाइजन। सो रूल्स 170 के ओमिट करने के नतीजे में बहुत सारी चीजें इसमें तो शायद अवाम और नास को प्रोवोक भी कर रही है। जिन चीजों को बहुत बड़े हुरूफों में जाली तौर पे दिखाना था वो बिल्कुल बारीक बारीक तह में रह गई, जिसे अमूमन एडवर्टाइजमेंट कोई पढ़ नहीं पाता। समवेयर आई बिलीव दैट it is a matter of debate that rule 170 what exactly is going to be happen. Okay, finally conclusion of my discussion, my part of the topic is this Drug and Magic Remedy Act provides provision for regulation of advertisement for whom the people who are claiming to have magical properties, cure specific disease and make false claims about the effectiveness of the drug. यही ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है for approving and regulating the advertisement of a drug and magic remedies, but इन्होंने पेनाल्टीज भी बताया हुआ है if you are violating the provisions। जैसे वक्त का तकाजा है, सन 1954 में जब ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट वजूद में आया हुआ था, तो हालात और टेक्नोलॉजी को मद्देनजर नजर रखते हुए जो डेवलपमेंट इंटरवेंशंस बढ़ते जा रहे हैं, उन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए इस एक्ट में तरमीम भी किया जा रहा है। फाइनली मैं कहता हूं कि जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया है दैट एंश्योरिंग द कंज्यूमर्स नॉट टू मिसलेड बाय डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट, जो गुमराह करने वाले इश्तिहारात हैं, पर्टिकुलरली जो दवाओं से मुताल्लिक, इलाज के मुख्तलिफ तरीकों के मुताल्लिक, so that contributing the public health and safety. This is what the conclusion of my daily talk. Thank you for patiently listening to me. I am here to address if you have any query related to Drug and Cosmetic Act. Thank you. I have some question. Yes, please. What are the steps taken by the governments to stop these unlawful advertisement? Sir, I didn't get you. Please repeat once again. What are the steps taken by the government to stop these unlawful advertisements? Once again, there is a problem. What is this KCT? Yes, sir. Can you type the query, please? Yes. I couldn't get. There is some problem in your voice is properly not getting Okay, clear sir, here. I'm writing. You please, anybody, if you have any query, you please message me. We have here the text box. You can put your query so that I can able to attend all of you. Yes, I'm writing my question. Okay, hello. Haji. Am I audible? Yes, sir. Yeah. Yeah, thank you. This is Dr. Tanveer from Yeah. GTCH. First of all, I would like to thank for your informative lecture and wonderful slides. I just wanted to know exactly what amount of or what extent of punishment is stipulated for particular advertisement. Is there any clear-cut punishment in terms of cash or any other way? Okay. Your question is over, Dr. Tanveer? Of course, sir. Yeah. Yeah. According to the Drug and Magic Remedy Act 1954, initially there was the penalty has been considered as 1,000 rupees of punishment and 6 months of imprisonment is there. Now there is an amendment with the Drug and Magic Remedy Act 2020 says that an amount of rupees 10 lakh is punished as a fine along with 2 years of rigorous imprisonment also. And this is for the first time if a person who is contravening the provisions of Drug and Magic Remedy Act. मान लीजिए कि अगर कोई शख्स बार बार इस तरह की दोहरा रहा है, गलती कर रहा है, तो the subsequent contravention of the provisions can leads to 50 lakh rupees of what is called as the financial penalty as well as 5 years, more than 5 years of imprisonment है. मिन जुमला इस वक्त
6 महीने से लेके 5 साल तक की कैद बमुशक्कत की सजा हो सकती है, और जुर्माना अभी हमने आपको स्लाइड में भी दिखाया हुआ है कि चंद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को 10 लाख रुपए 11 लाख रुपए तक का भी जुर्माना आयद किया गया है, जिनसे पेमेंट लिया गया हुआ है। It means you want to say that it's very clear that punishment is over there and rule must be followed. Yes, truly, you have to. Or all the people who are involved in such a kind of advertisement, they should be aware of this Drug and Magic Remedy Act. अगर हम कोई भी चीज को वायलेट कर रहे हैं, it's a punishable offense. The penalty is clear. So what's if you can further clear, what is the procedure, whether you court sends any notice or they call verbally or they send some physical person to warn them, what is basic? Yes. So I'm just wanted to know, because after knowing this we can you can make understand someone what is the entire procedure. Right, sir. Initially, what happened now? Any person who reported this as a misleading, or such a misleading advertisement reached to any agency, they will refer such a misleading advertisements to the respective state drug and licensing authorities. मान लीजिएगा कि बिहार के किसी भी जिले में अगर कहीं भी इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही है या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो, जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट्स के कंट्रवेंशन है, रूल की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो सच इश्तिहारात, ऑल सच एडवर्टाइजमेंट विल बी एड्रेस टू स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के पास जाएगा। स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को एम्पावर किया गया है कि वो उन पे एक शोकाज नोटिस इशू करेंगे, उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे। अगर उनका एक्सप्लेनेशन कन्विंसिंग नहीं है तो देन उस पे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द पेनल्टी सेक्शन है जो है वो बाकायदा लेजिस्लेटेड है, जुडिशियल अप्रूव है, उसके तहत बाकायदा उस फार्मास्यूटिकल को एक तो फाइनेंशियल पनिशमेंट हो सकता है या इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। फाइनेंशियल एंड इम्प्रिजनमेंट बोथ द थिंग कैन आल्सो हैपन। इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये हुआ कि बाकायदा आप पे केस किया जाएगा और उस इलाके की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा, तो लोग जाएंगे और वहां से उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मजीद एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में एक सेक्शन ऐसा भी है जिसमें स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटीज वहां के सिस्टम से रिलेटेड किसी भी गजेटेड ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर बनाकर इंक्वायरी करवाएगा। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई फिजिशियन हो, उनसे मुताल्लिक कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट रिपोर्टेड हो, तो ये गजेटेड ऑफिसर जो नोडल ऑफिसर कहलवाएगा, नोटिफाइड पर्सन, वो जाएगा, तफ्तीश करेगा। एंड आई सेड दिस इज अ गजेटेड ऑफिसर। गजेटेड ऑफिसर की रिपोर्ट उस इलाके की जो अदालिया है, कोर्ट है, कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टेटस 1 मजिस्ट्रेट स्टेटस 1 यानी क्लास 1 मजिस्ट्रेट होगा, दे आर अवेयर ऑफ दिस द पावर्स ऑफ दिस ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, दे इश्यू द ऑर्डर्स टू go and arrest the person who involved in this kind of offense. I hope that you got the answer to the question. Yeah, exactly, sir. You really clarified everything in a very lucid manner. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. And doctor, he was asking, there was a question. Nadeem already mentioned presentation. Yes, the presentation has been recorded. Will be uploaded, inshallah. Information important. Okay. डॉक्टर नदीम, आप अगर हैं तो सर से क्वेश्चन कर लें। Yes, Fauzan Hijama Center Darbhanga was asking what are the steps taken by the government to stop unlawful advertisement. गालिबन आपने हमारा प्रेजेंटेशन सुना होगा, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में क्लियर है हर चीज के मुताल्लिक। अनलॉफुल एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए आस्की जैसे यानी एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की मदद ली गई। गामा पोर्टल एक मौजूद है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम एक है, कंज्यूमर काउंसिल भी है। ये तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज बाकायदा मुतहरिक हो चुकी हैं। जरूरत इस बात की है कि आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स और सिटीजन्स, यू नीड टू एस्केलेट, आप इन चीज़ों को अथॉरिटीज के गोश से गुजार कीजिएगा, एंड यू कैन सी दैट हाउ दैट लॉ विल एक्ट अगेंस्ट देम। So government of India has already established regulatory issues are there. Fabulous, very informative. Thank you. Here, jobs as these days. अस्सलामुअलैकुम सर। Sir, 1 minute please. यहाँ एक और मैसेज आया, एक सामने लिखा हुआ है कि हजाम्स, as these is many so-called hajam active in the name of Sunnah Nabawi, is there any option to report these things? Definitely you can report it. मैंने आपको एक स्लाइड में दिखाया हुआ था
हिजामा की इफादियत को एक सेलिब्रिटी जो टेनिस प्लेयर थी हैदराबाद से, उन्होंने खुद इसका इस्तेफादा हासिल करते हुए उन्होंने रिपोर्ट किया कि द बेस्ट एंशिएंट थेरेपी. बट बाय द सेम टाइम आई हैव शोन यू if such a regimens have a potential effect, no need to take the miskinding of what is called a vulgar kind of advertisement. एक खातून को बरहना करके उसके जिस्म पर हिजामा के कप लगाए जा रहे हो, जब हम कह रहे हैं कि सुन्नत नबवी भी है, तो इस मुक़द्दस तरीक़े इलाज को इस तरह का तशहीर करना गैर अखलाकी भी माना जाता है, गैर शरई भी माना जाता है. You can take action. You can please report us. We look into the what is called as the gravity of the issue, and according to the provisions of the Drug and Magic Remedy Act, appropriate action will be initiated. मजीद मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि इलाज का कोई भी तरीका हो वही लोग कर सकते हैं जो क्वालिफाइड हो. जैसे आरएमपी का रूल देख लीजिएगा, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट सेक्शन 2 के डेफिनेशन में जो आरएमपी कहलवाता है, किसी ना किसी तरीके से मुस्तनद होना चाहिए, या वो शख्स जो इलाज कर रहा है उसके पास कोई सनद हो, सर्टिफिकेट हो किसी इदारे से, और वो इदारा भी गवर्नमेंट ने तस्दीक शुदा हो, तो आई थिंक दे कैन प्रैक्टिस. अदरवाइज दिस इज समथिंग लाइक ए क्वाक. Quacks are the non-institutional people. They don't have the what is called the dictum of the science. So ये भी misleading हो जाएगा. Already mentioned. Okay. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Sir, this is Dania from GTC at second year. Okay, ma'am. Sir, you explained in above slides that magic remedy is something that consists of taweez, kavach, vagera. But if you see in Julkhasa, we study Darun Jakrabi. We give this as a taweez to pregnant women for their protection for whatever that pregnancy is. So we have categorized this Darun Jakrabi in Julkhasa, and is it not a magic remedy? Matlab, I am confused in this. Okay, that's a very interesting question, Dr. दानिया. आपने बड़ा अच्छा सवाल किया. दरुन जखरबी आप हामिला औरतों में तावीज की शक्ल पे यानी उसको Yes, किसी sir. कपड़े में या तागे में बांधकर आवेदन. इसका रेफरेंस कहाँ मिला आपको? कैसे, how you came to know about that दरुन जखरबी should be given like this? So we have read in second year ये दवा गिज़ा एंड जुल्खासा, और जुल्खासा के एग्जाम्पल में ये दिया हुआ था सर कि दरन जकरबी को हामिला औरत में लटकाते हैं ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले. करेक्ट. तो आपने किताब में पढ़ा हुआ ये तरीका इलाज है. दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ. मजीद आपको शायद मुस्तकबिल में ये भी पता चलेगा, ऊद सलेब को भी इस तरह बदन पे आवेजा करने से मिर्गी के दौरे रुक जाएंगे, है ना. तो आइए बात बताते हैं कि मैजिक रेमेडी में ऐसे तावीज़ात, ऐसे जंतर मंतर, ऐसे तिलसिमात जिसका कोई रियलिटी से एग्जिस्ट नहीं करता. आपने देखा होगा कि एक बाबा आपको अभी मौजूद है, एक साहब रुमाल बांधकर बदन इंसान को कह रहे हैं कि इससे आपको शिफा हो जाएगा. बाद लोगों के हाथों में देखा होगा कि लाल या सियाह कलर की एक थ्रेड बांधा हुआ होगा. They said that these have the miraculous effect. ऐसी वो तमाम चीजें तावीज की शक्ल में या बदन के ऊपर उड़ाई गई हो या किसी चीज का विरदान करना जिसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता, महज लोगों के अकीदे बनाइएगा या लोग इलाज मुआलजा से तंग आकर किसी बाबा, वेद, मुंशी या पीर बाबा या किसी के पास जाके लेते हैं जिसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होगा, जो इलाज के तरीक़ेकार में नहीं आएंगे. आप ध्यान दीजिएगा, दावा करेंगे कि ये मैजिक का इफेक्ट रखता है, आप कर लो, तो उन चीजों को कहेंगे. आपका जो सवाल था, आपने इसको दरुन जखरबी को इस तरह लगा रही, वो तावीज नहीं है. तावीज मतलब जिसका कोई साइंटिफिक वजूद नहीं है, बट लोग उसे क्लेम कर रहे हैं कि इसके इस्तेमाल से आपको शिफा हो जाएगा. आई होप दैट यू गॉट द आंसर टू क्वेश्चन. यस सर. माय सेकंड क्वेश्चन वाज, आपने बोला कि एडवर्टाइजमेंट वाला जो था कि जो डोर था कि एडवर्टाइजमेंट करना है, तो सर हम लोग का जो सेक्टर है, यूनानी फील्ड है, उसमें ऐसे लोग को अट्रैक्ट करने के लिए भी तो हम लोग को एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग ज़्यादा प्रेफर एलोपैथ को करते हैं, और उसके बाद अगर कोई करते हैं तो आयुर्वेद को करते हैं. तो हम लोग ऐसा कौन सा क्राइटेरिया ले जो लोग अट्रैक्ट भी हो और हम लोग को ऐसा झूठ भी ना लिखना पड़े.
आपका आप बताओ एज ए यूनानी स्टूडेंट स्टेक होल्डर, आप एडवर्टाइज करना चाहती हो, क्या करना चाहती हो एडवर्टाइजमेंट से मुताल्लिक, यूनानी के सर मुताल्लिक? मतलब अगर अपना क्लिनिक है या अगर कोई चीज ऐसा जो स्पेशलिस्ट हो अगर किसी चीज में अगर आगे जाके, तो उसको कैसे अपने क्लिनिकल बोर्ड पे डाले कि लोग अट्रैक्ट भी हो और वो ऐसा झूठ भी ना, जैसे वो लिखे थे कि 22-23 पेशेंट जितने भी कामयाब हुए, वैसा नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा क्राइटेरिया होगा जो एक अच्छा स्टैंडर्ड दे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में एक प्रोविजन ये भी है, आप जहां प्रैक्टिस करते हो आपकी क्लिनिक पे बोर्ड जो रखते हो वो मिसलीडिंग में नहीं आएगा। उसके अलावा किसी इश्तिहार की शक्ल में, पॉम्फलेट की शक्ल में, सर्कुलर की शक्ल में, दीवारों पे पेंट करवाकर डिजिटल मीडिया में आप जो प्रोपोगेट करोगे उसको कहा जाएगा ऑब्जेक्शनेबल। आपकी क्लिनिक पे आप अपना बोर्ड लगा सकती हो, वहां लिख सकती हो, राइट? यस। Other than that, you are not supposed to use any device, any media to promote yourself. हाँ, दूसरी बात यह है, अगर आपने किसी एक इलाज पे अच्छा सा रिजल्ट निकाला हुआ है, वो फॉर पब्लिकेटिंग द पेपर, बहुत सारे जर्नल्स हैं जिसमें आप अपनी स्टडी की रिपोर्ट कीजिए। मुमकिन है उस रिपोर्ट की बुनियाद पे लोग मुतासर होकर आपको तलाश करते हुए पहुंच जाएं, जिससे आपके सिस्टम की बका भी होगी और आपके सिस्टम के अंदर एविडेंस भी जनरेट होगा। ये बहुत वैलिड रीजन होगा, वैलिड वे ऑफ promoting your system होगा, instead of that going and claiming the advertisement that may mislead the people. I hope that you got the answer to the question. Yes sir, thank you so much sir. Yes, yeah. Again the same question, somebody is asking Dr. Samiullah Saifi, if any registered doctor wants to advertise their unspecific knowledge, what kind of a knowledge is this? If it is related to medicine, there are so many platforms are there, you can share. आप अपना experiences, जैसे webinars हैं, किसी seminar है, invited lectures हैं, तो आप वहाँ कर सकते हो। सोसाइटी में आप लोगों को सजेशन दे सकते हो, बट क्लेम मत करना, दावेदार क्लेम मत करना। कहीं see here we have a very minor line of demarcation, उसको अगर समझ आ जाएगा, I don't think so there will be a problem. You can share the knowledge. People are there to learn so many things. Okay, I hope that you got the answer, Mr. Samiullah. And here बिना एडवर्टाइजमेंट के लोगों को पता लगने में बहुत समय लग जाएगा, तो दैन कैसे हम बिना एडवर्टाइजमेंट के कम समय में लोगों को अपने पते के बारे में लोगों को जानकारी बता सकते हो? एक साहब ने लिखा हुआ है कि बिना एडवर्टाइजमेंट में कि हम शॉर्ट टाइम में कैसे लोगों तक पहुंचे। अगर आपका कारनामा अच्छा होगा, आप अगर बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो here say the people are there, mouth to mouth transmission of information is also there, but for that advertisement की जो कोड्स हैं, मैंने बताया कि आस्की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन एडवर्टाइजमेंट, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के कोड्स बनाए हुए हैं। कोड में बाकायदा उसका डिस्क्रिप्शन है, अगर आप उन कोड्स को देख लोगे, it is not possible to you because technically you need to take the services of the people of advertisement developers. वो उन कोड्स को फॉलो करके आपका इश्तिहार बना सकते हैं, बट वो सारी चीजें विद इन द प्रोविजंस ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट हो सकता है, राइट? नदीम सर का कोई सवाल था सर, आप पूछिए अपने सवाल। जी आंसर कर दिया, पूछने नदीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी नदीम साहब। सर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दी है, और मेरा जो सवाल था उसका जवाब भी आपने बातों बातों में दे ही दिया। सर एक चीज सर मुझे बस ये क्लियर करनी थी, जैसे मैंने ये पूछा था कि भाई अगर कोई हमें मिसलीडिंग एक्ट या ऐसा मिलता है तो उसको हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आपने थोड़ा बहुत बताया ही है उसकी डिटेल। और दूसरी एक चीज और थी सर इसी से रिलेटेड कि जैसे एडवर्टीजमेंट के मुतालिक ही मैं भी जहाँ ओपीडी में बैठता हूँ, मैं गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर हूँ, मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, तो वो रेफरेंस देते हैं कि मैंने यूट्यूब पे फला का ऐसे लेक्चर देखा, या मैंने फला चैनल पे फला हकीम साहब आते हैं, उनका ये प्रोडक्ट है, और वो आके मुझसे यही कहते हैं कि हमें इसी पर्टिकुलर उसका ट्रीटमेंट चाहिए। अब कुछ बातें तो मैच कर जाती हैं कि चलो ठीक है, इस सेंस में हम ये कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें प्रोपोगेट होती हैं जिनका कि हमारी नॉलेज में हो सकता है भाई हमने नहीं पढ़ा या हमें नहीं उसकी नॉलेज है, लेकिन पेशेंट हमको प्रेशराइज ये करते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं कि हमें फला हकीम साहब ने कहा था इससे ही ठीक होगा, तो आप हमें यही ट्रीटमेंट दीजिए। तो इस तरह के उसको हम कैसे कम बैक करें?
इस पे थोड़ा सा क्लियर कर दिए, बाकी सर और तो चीज आपने क्लियर कर दी, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू डॉक्टर नदीम। बड़ी लंबी बात थी। पहली बात तो मैंने बता दिया था कि कैसे रिपोर्ट किया जाए। आपका नियरेस्ट जो पेरिफेरल फार्माको विजिलेंस सेंटर, आप मेरे ख्याल से जयपुर में रहे हो नदीम? जी सर। नो सर, आई एम इन दिल्ली। यू आर इन दिल्ली, ओके। दिल्ली में हमारे बहुत सारे पेरिफेरल फार्माको विजिलेंस सेंटर्स हैं, आप वहां पे भी आप भेज सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि गामा पोर्टल एक है, गामा पोर्टल पे आप रजिस्टर करके दर्ज करा सकते हो, या सीधे सीधे एक मेल कर दीजिएगा इंटरमीडिएट फार्माकोविजिलेंस सेंटर यूनानी का। हमारी यहाँ आई वुड लाइक टू सबमिट टू ऑल द पीपल, वी डोंट हैव एनी लिमिटेशन। इफ यू वांट यू कैन सबमिट एनी एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग फ्रॉम एनी आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी का भी आप हमारे पास भेज सकते हो, बट वी आर एम्फसाइजिंग टू कलेक्ट यूनानी रिलेटेड वन। आप भेज दीजिएगा, पेरिफेरल सेंटर पे भेज दीजिएगा, या तो गामा पोर्टल से आप उसको दर्ज करा दीजिएगा, ठीक है? वहां से इसकी कार्रवाई होती रहेगी और रिपोर्ट करने वाले शख्स की आइडेंटिटी को भी रिवील नहीं किया जाएगा। एक दूसरी बात, आपने बताया कि आपकी क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो यूट्यूब के चैनल से, यूट्यूब से या किसी डिजिटल मीडिया पे कहीं ना कहीं उन्होंने किसी हकीम साहब का नुस्खा सुना होगा, दवा सुना होगा, और कहेंगे वही इलाज हमें कराइएगा। तो मैं यहाँ आपको अटेंटिव कराना चाहता हूँ कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट सेक्शन 2 के डेफिनेशन में हमने आरएमपी को जो समझाया, आया उस हकीम ने जिससे उन्होंने दवाई ली, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या नहीं, पहले तस्दीक कर लीजिए। अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा तो फिर उस पर बहुत सारी पाबंदियां हो जाएंगी, क्योंकि वो दवाई को तैयार करके मरीज को दे सकता है, इश्तेहार नहीं करेगा। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चला रहा है तो बाकायदा उसके बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं फार्मेसी चला रहा हूं तो मेरे प्रोडक्ट बाजार में दस्तयाब भी होंगे जो मैं मरीज वहां से खरीद के इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं। मैंने बताया कि केरला की एक स्टडी का हमने हवाला दिया था जिसमें काफी नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने करीबन 80 ऐसी दवाइयां थी जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड और दीगर इन दवाओं को तैयार करके सिर्फ अपने काउंटर पे बेचा करते थे। अगर ऐसा मामला है तो देन इट इज आल्सो अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ सच ड्रग्स। तो उन लोगों पे एक्शन इनिशिएट करने के लिए इस चीज को, पेशेंट की मुतालबा इज डिफरेंट। मिसाल के तौर पर मान लीजिएगा कोई साहब किसी हिंदुस्तान की किसी रियासत में इलाज कर रहे हैं, उनकी दवाई वहीं मिलेगी, वो किसी काउंटर पे नहीं फरोख्त करोगे। जो पेशेंट आपके पास है, आप जो दिल्ली में बैठे हो, तो उसका इलाज तो उसकी मर्जी से नहीं कर पाओगे। आप उसको समझाने की कोशिश करोगे मैं आपको उससे बेहतर इलाज करूंगा, लेकिन मरीज की नफ्सियात ऐसी होती है कि उनको वही दवाई चाहिए। आप तो यहाँ कोई सेल्समैन नहीं हो, आप तबीब हो, लिहाजा आप उनको समझाने की कोशिश कर सकते हो अगर आपको इंफॉर्मेशन हो कि वो तबीब आरएमपी है, नॉन आरएमपी, उसकी दवाई किसी फार्माकोपिया से बनी हुई है या नॉन फार्माकोपिया, या उसकी प्रोप्राइटरी ड्रग है, अगर है फार्मेसी से कहाँ फरोख्त करता है, चाहे तो मरीज वो डायरेक्ट वहां से मंगा ले। अगर इस दौरान कोई भी किसी भी किस्म की अगर कहीं भी मिसगाइड करने वाली अगर इंफॉर्मेशन हो तो आप हमारे नोटिस में ला सकते हो। आई होप दैट यू गॉट द आंसर टू द क्वेश्चन। जी सर, थैंक यू। एक सर छोटी सी बात और थी जी। जैसे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, जैसे जो भी क्लासिकल, इवन की क्लासिकल मेडिसिन या उनके अपने जो पेटेंट मेडिसिन है, तो जब वो बनाती हैं तो उसके लेबल के ऊपर इंडिकेशंस मेंशन कर देती हैं कि ये दवा इसके लिए है, ये दवा इसके लिए है। और बहुत सी कंपनीज ने अपनी बुकलेट भी छाप रखी है। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे क्वैक्स हैं जो उन्हीं बुकलेट के जरिए से जो है अपने आप को प्रैक्टिशनर बना के बैठे हैं, क्योंकि वो दवाओं के ऊपर, इवन के जैसे हमारे यहाँ सप्लाई में IMPCL की दवाएं आया करती थी, उस पर पहले इंडिकेशन आते थे। तो कभी ऐसा कुछ दवाएं ऐसी होती है ना जो हम लोग मल्टीपल डिजीज में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शरबत उन्नाब है, उसको हम लोग स्किन में भी दे सकते हैं, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी दे सकते हैं। तो होता है ये, जब हम एक मरीज को देते हैं, दूसरे मरीज को जब वही लिखेंगे तो वो कहेगा डॉक्टर साहब ये दवा तो खांसी की थी, इसको आपने यहाँ क्यों दे दी। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर ऐसा कोई वो है कि सर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इस तरह का इंडिकेशन हो सके कि ये दवाओं पे इंडिकेशन ना आए, वरना ये लोग अपने आप में एक हकीम बनना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत होती है हम लोगों के साथ। तो इसके मैंने आपका सवाल को बड़े अच्छे से सुना। यहाँ दो बातें आ रही हैं। बाहर प्रैक्टिशनर जो बैठे हैं क्वैक ही लोग होंगे जो इस तरह की चीजों से मोटिवेट होंगे और प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। बट ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल में बाकायदा इस चीज को लिखा हुआ है कि आप जब दवाई किसी भी फार्माकोपिया की बनाते हो तो उसमें उसकी इंडिकेशंस भी लिखना जरूरी है। खासतौर पे दवाओं के इस्तेमाल से मुताल्लिक उन्होंने कॉशन भी लिखा है, दिस ड्रग इज मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज, दिस ड्रग इज मेंट फॉर इंटरनल यूज। इन चीजों को भी लिखना बहुत जरूरी है। ये कानून है, लिखना ही है। हम तो शायद
कहीं भी इस तरह का वो नहीं देखा कि इस तमाम मल्टीपल इंडिकेशंस को मेंशन नहीं किया जाए। मुमकिन है इस पर शायद कोई अमेंडमेंट आ जाए, हो सकता है इस वक्त शायद मेरे इल्म में नहीं हो बात को, बट जितने भी आयुष ड्रग्स हैं उस पे तो मार्केटेड प्रोडक्ट पे ये इंडिकेशंस होते हैं, बट ओनली थिंग इज क्वैक को कैसे कंट्रोल किया जाए, बट अगेन इट इज ए पॉलिसी मैटर। आई होप दैट सर जी हाँ जी सर, थैंक यू सर, आपने बात तो सही कही। एक चीज जैसे मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे तो एलोपैथिक मेडिसिन है, जैसे बहुत सी एंटीबायोटिक्स है या जो भी एलोपैथिक मेडिसिन इंडिकेशन नहीं है, तो ये इंडिकेशन लिखने का आयुष के लिए स्पेसिफिक है या? मैं आपकी बात मुकम्मल नहीं सुन पाया क्योंकि वहां पे ओवरलैपिंग हो रहा था साउंड्स। नदीम कह रहा हूँ कि जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में के ऊपर इंडिकेशन नहीं होते हैं, करेक्ट, कहीं पे भी पेन किलर या एनाल्जेसिक या ऐसा से नहीं लिखा होता, कुछ कुछ पे लिखा होता है माइल्ड लैक्सेटिव है वो, लेकिन जनरली नहीं होता है। तो क्या ये सिर्फ आयुष के लिए है ये रूल या सभी के लिए? अगर सभी के लिए है तो फिर किसी में नहीं होना चाहिए। आयुष की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने बाकायदा इन तमाम चीजों को अलग अलग तौर पे लिखा हुआ है। मसला सिर्फ यूनानी का नहीं बल्कि आयुर्वेद का, होम्यो की दवाओं पे भी आपको मल्टीपल इंडिकेशंस मिलेंगे जो मार्केटेड ड्रग हैं। ये प्रोविजन है भी, प्रोविजन जब है तो उसको अमेंड करना पड़ेगा क्योंकि आप मतलब इनडायरेक्टली ये प्रमोट कर रहा है क्वैक्स को सीखने में, लर्निंग में, प्रैक्टिसिंग के लिए, तो ये प्रोविजन को अमेंड करना पड़ेगा। लेट मी चेक इनटू दिस अदर एस्पेक्ट आल्सो। कन्वेंशनली एलोपैथ के लिए तो ऐसा है नहीं, उनका तो बिल्कुल मॉलिक्यूल सेपरेट है, अलग अलग है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग सिर्फ एंटी हाइपरटेंसिव होगी, डायबिटिक की ड्रग डायबिटिक पे होगी क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर स्टडी है, मॉलिक्यूलर लेवल पे छोटे छोटे। हमारे पास बहुत सारे मुरक्कब दवाएं हैं, हमारा एक फॉर्मुलेशन खुद पॉलीफार्मेसी होता है। आप देख लीजिएगा माजून अबीदुल्लाह ले लीजिएगा, उसमें कोई 32 दवाएं ऐसी हैं, हर दवा का एक अफ़ाल ख़ास है। अतिबार में उसकी मुख्तलिफ अफ़ाल ख़ास को जब बयान किया हुआ है तो उसको भी इस पर कलमबंद करना पड़ा। वी विल टेक अनदर चांस टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, लीगली क्या कुछ हो सकता है, विल अटेंड दिस इशू। एक साहब ने लिखा है कि सर मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है जो दिखता है वही बिकता है, इस तर्ज अमल को यूनानी से कैसे बचाया जाए? डॉक्टर साहब दिखाइएगा वो जो गुमराह नहीं कर सकता है। हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गुमराह नहीं करेंगी। मैंने कहा अगर आपकी दवाई बहुत ही अच्छे असर कर रही है तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे और ऐसे अल्फाज में बताइए जो लोगों को गुमराह ना करें। बस अल्फाज की इस्तेमाल और आपका जो अंदाज़े बयान और जिस मीडिया से आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो ये माने रखता है। सर यकीनन दिखाइएगा क्योंकि वो बिकेगा भी और वो आम नास में शायद गालिबन प्रमोट भी होगा। जज़ाकल्लाह सर फॉर योर इंफॉर्मेशन। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हफीज साहब आप हैंड रेज किए हैं, आप अपने सवाल पूछिए सर से। जी डॉक्टर हफीज साहब नेक्स्ट पूछ लीजिए जिन्होंने रेज किया है प्लीज। डॉक्टर नगमा आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। डॉक्टर इकरा आपने भी हैंड रेज किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं सर से। गवर्नमेंट का ये रूल रेगुलेशन कैसे मिलेगा? सॉरी कुछ सवाल कुछ बताया आपने सर? गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है ये कैसे हासिल होगा? आप इंटरनेट पे जाइएगा, जाके पूछिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1945, करीबन 500-600 पेज पर मबनी आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसमें तमाम चीजें लिखी हुई है। अभी आप ब्राउज कीजिएगा ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट एंड रूल 1945, करीबन 600 पेज पर मबनी एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें तमाम चीजें लिखी हुई हैं। दूसरा भी एक और ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, ड्रग एक्ट, दोनों भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपके सवाल का जवाब उसमें मिल जाए। मोड ऑफ यूज, डॉक्टर साहब ने लिखा कि मोड ऑफ यूज तो मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया कि कैसे मोड ऑफ यूज मतलब मुझे जो समझ आ रहा है कि आप कैसे एक्सटर्नल इस्तेमाल करोगे या इंटरनल। अगर ऐसी बात है तो ये तो बाकायदा मैंने कहा कि अब तो बाकायदा तमाम दवाओं पे आयुष की उसको लिखना पड़ेगा। एक सेक्शन मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ पर्टिकुलरली उन दवाओं पे जिनके अज्जा शेड्यूल ई में शामिल किए गए हैं जो जहरीले दवाएं होती हैं,
जहरीले या दर्जे चारूम की दवाइयां बता दीजिएगा। अगर कोई मुरक्कब है, जैसे बर्शाशा ले लीजिएगा जिसमें अफ्यून शामिल है, उसकी ज्यादा मकदार अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो मुमकिन ये मोहलिक साबित होगा। तो फार्मेसी वालों को बाकायदा कहा गया कि आप दवा के डब्बे पे जहां पे लेबल करते हो उसमें लिखिएगा कॉशन लिखिए, और उसमें बाकायदा बता दें कि ये दवा ये महदूद इस्तेमाल पे करें या एडवाइस ऑफ द फिजिशियन इस्तेमाल करें। मोड ऑफ यूज इज, आई थिंक इट इज नॉट ए कन्विंसिंग टर्म। इंडिकेशंस प्रोविजन है जो लोग लिख रहे हैं, हमारी यूनानी की बहुत कम लोग। बिल्कुल सही कहा सर, हमारे यूनानी के बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। एंड नाउ अगर आप इस बात पर हमसे सवाल करोगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ने जो कुछ किया उसको एक साइंटिफिक पेपर्स की शक्ल में पब्लिश कराया हुआ है। आप भी अगर यही अमल करोगे तो मुमकिन है। एंड नाउ दैट साइंटिफिक पेपर्स अट्रैक्टिंग द ग्लोबल कम्युनिटी, दे आर रीचिंग टुवर्ड्स अस फॉर द ट्रीटमेंट। ये बहुत अच्छा होगा। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था सर। How to get misleading ad related regulations? I got जी पूछ सकते हैं आप डॉक्टर आयशा मैम। Hello, good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Hello. Yes, sir. जी सुन रहे हैं। Yes, sir. I wanted to suggest that, like, instead of writing, like we write Yarkan and many other diseases of the liver in the indications, we should write that it is Mukhrija Safra and it's a Mukhrija Balgam, or it's like anything. Like, I wanted to say that we should write the mode of the use, like not indication, like which is the not the source or anything like that. We should use whether it is in this way we will be able to combat it. We like the most of the quacks will not be able to understand, and we can also write the indication in the same way. Okay, thank you for helping me then to understand the word what you have used. And now the provision is indicated that you have to mention all those things. अगर नेशनल यूनानी NFUM देखोगे, नेशनल फार्मुलरी ऑफ यूनानी मेडिसिन, बाकायदा उसमें मुरक्कब का नाम लिखा होगा, उसके अज्जा लिखे होंगे और नीचे इंडिकेशन लिखा होगा और डोसेज भी लिखा होगा। अगर NFUM से या जो चंद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल बी में जिन खराबादिनों का जिक्र है, उन खराबादिनों में हर दवा का, हर मुरक्कब का यही मामला है कि अज्जा और उसके इंडिकेशन लिखी हुई है। मान लीजिए इन खराबादिनों से अगर आप दवाई तैयार कर रहे हो, मार्केट कर रहे हो, प्रोड्यूस इन द सेंस सेल कर रहे हो, तो आपकी लेबल में ये होना चाहिए जो उसका सोर्स में लिखा गया हुआ है। जहां तक आप बता रहे जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे मुखरिज बलगम, मुस्लिह सौदा या मानिए मुस्किन अलम, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन की तरफ ले जाती हैं। उसके लिए प्रोविजन नहीं है इस वक्त। थैंक यू डॉक्टर रहमतुल्लाह रहमानी जी। सर कह रहे हैं कि जिनको ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 चाहिए, सर का फोन नंबर दिया हुआ, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको भेज देंगे। या दिस इज फ्रीली अवेलेबल विद अमेंडमेंट 11th अमेंडमेंट 2018 का, वो भी इसके साथ मिल जाएगा, वेबसाइट पे अवेलेबल है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940-45 भी ले लीजिएगा, दोनों चीजें आप रख सकते हैं। आई होप दैट डॉक्टर आयशा यू गॉट द आंसर टू द क्वेश्चन। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, man. Thank you, sir. This wonderful presentation और हम सबके डाउट क्लियर करने के लिए अब मैं डॉक्टर तनवीर सर, हमारे कोऑर्डिनेटर पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर पटना, सर को मैं दावत दूंगा कि सर आप वोट ऑफ थैंक्स के साथ इसको कंक्लूड कीजिए। शुक्रिया डॉक्टर वैश अहमद। आज का जो नेशनल सेमिनार था उसका टॉपिक था द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। सर ने बहुत अच्छे तरीके से और उस लैंग्वेज में जो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मेरा यकीन है कि ना कि सिर्फ और सिर्फ जितने भी पीपीवी सेंटर्स हैं उनके जो रिक्रूटेड स्टाफ है वो रिपोर्ट करने में उनके लिए आसानी होगी, बल्कि और भी जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं
उसमें डॉक्टर, पीजी स्कॉलर, नर्सेज, इंटर्न, वो उन सबको भी बहुत इससे हेल्प मिलेगा कि हम कैसे रिपोर्ट करें और किन चीज़ों को रिपोर्ट करें, ज़्यादातर दिक्कत आती है। साथ ही जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ था, इसमें लेसन था, एग्जाम्पल्स सर ने सेट किए कि कैसे कैसे लोगों को पेनाल्टीज मिली, प्रैक्टिशनर्स, इवन के आम पब्लिक जो दवा को कंज्यूम करते हैं यूनानी की, उनका जो हक है वो किस तरह से इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। ज्यादातर देखा जा रहा है कि यूनानी कॉलेजेस में, सेंटर्स में थोड़ी सी हिचक होती है रिपोर्ट करने वालों में और जो इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उनके बीच। ये प्रेजेंटेशन उनके लिए बहुत आसान था कि वो उनको समझें और प्रैक्टिस में लाएं। साथ ही सर ने जो एक्ट एंड सेक्शंस बताए, खास के एक्शन 5 जिसमें फॉल प्रोमिसेस, जितने भी फॉल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जो ऑब्जेक्शनेबल होते हैं, जिन्हें हमें रिपोर्ट करना है। सेक्शन 6 में सर ने बताया कि क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला इनसे जुड़ा होता है, और जो कई क्वेश्चन आए पेनाल्टी भी, जो सेक्शन 7 में बताया कि शुरू में फर्स्ट में आपको 2 साल और 10 लाख, इसी तरह सेकंड बार आप करेंगे तो 5 लाख एंड 50 लाख एंड 5 years की आपके इम्प्रिजमेंट हो सकते हैं। ये बहुत इंफॉर्मेटिव हम सब के लिए, हम लोग सीखते हैं। इसके साथ ही सर का खुद का, सर के नाम से चैनल है, प्रोफेसर मोहम्मद अलीमुद्दीन कमरी करके। आप अथॉरिटी हैं यूनानी में फार्माकोविजिलेंस को लेके। आप सर के चैनल्स पे इससे रिलेटेड जितने भी और भी पहलू हैं, इलाज भी तदबीर वाले, कैसे इसको रिपोर्ट करें, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे हिजामा को लेके। सर ने पैकेजिंग पे और दूसरे प्रोसीजर्स पे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है जिसको रिपोर्ट कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस के ताल्लुक से A to Z जानकारी सर के चैनल पे मिल जाएगा। और सर और दूसरे स्पीकर्स के कुछ लेक्चर्स हमने भी GTCH पटना के YouTube पे डाला, वहां भी आप फर्दर देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर तजस्सुस है आपके ऊपर, आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारी अच्छे अच्छे लोग जुड़े, जो जिनका कुछ चंद का मैं नाम लेना चाहूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामिल साहब जो UAE से जुड़े हैं। अब्रॉड में यूनानी को लेके आपकी बहुत कोशिशें हैं, नोटिसेबल कोशिशें, जो लोग जानते हैं अब्रॉड में यूनानी को, आपसे वाकिफ हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मलिक साहब लखनऊ से जुड़े, डॉक्टर रहमतुल्लाह रहमानी साहब। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आज के जो पार्टिसिपेंट्स थे फार्माकोविजिलेंस के प्रोग्राम में, इतना लेंदी प्रोग्राम, इतना इंटरेस्ट से सुनना, फिर उस पर क्वेश्चन करना। सर इसमें डॉक्टर के साथ साथ वो भी बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जैसे दानिया ने, नवनीत ने आपसे बात की इस मामले में। उसके साथ जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे, डॉक्टर नदीम ने दिल्ली से क्वेश्चन किया, डॉक्टर फौजान ने किया, डॉक्टर समीउल्लाह जो PG कर रहे हैं, हम सबके शुक्रगुजार हैं। ये शो करता है कि लेक्चर कितना इंटरेक्टिंग था, कितना इन्वॉल्विंग था हम सबके लिए इस प्रोग्राम को करने में, और इसको डॉक्यूमेंट इस तरह से आप तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा रोल रहा है हमारे सरप्रस्त प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब, जो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट तबी कॉलेज पटना से। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये फ्लॉलेस जो हमें मौका मिला और हम इसको कर पाए, उसके लिए खुद प्रोफेसर मोहम्मद अलीमुद्दीन कमरी सर, जिनकी सरपरस्ती रही, और सर की टेक्निकल टीम की तरफ से डॉक्टर राबिया मलिक जो SRF है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में IPV सेंटर में, उनका रोल रहा। और यहाँ लोकली जो इस चीज को टेक्निकली हैंडल कर रहे थे, आप लोगों को फॉर्म दिया गया फीडबैक भरने के लिए, उसको भरिएगा, फिर आपको सर्टिफिकेट जाएंगे। जितने लोगों ने रजिस्टर किया उनको कोऑर्डिनेट करना, ये सारा काम डॉक्टर वैश अहमद देख पा रहे थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, फिर भी एक सेकंड के लिए हिचक नहीं होती है जब भी हम दावत देते हैं। सर से गुजारिश करते हैं, सर अवेलेबल होते हैं। कल भी सर का लेक्चर था होम्योपैथी के किसी सेंटर में फार्माकोविजिलेंस पे। इस नोट के साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चीजें जो रिकॉर्ड में आ रही है फार्माकोविजिलेंस को लेके, जो आपकी लीडिंग पोजीशन है, हम सब उसको महसूस कर रहे हैं और दुआ करते हैं कि आप बेहतर और मौका मिले, हम आपको सुन सकें, इससे बेहतर प्रोग्राम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू ऑल, थैंक यू। आप लोग जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, फीडबैक फॉर्म अभी भर दें, सर्टिफिकेट्स उनको बहुत जल्दी इशू हो जाएगा। हेलो।